Hello everyone, welcome back to my channel, My Lord. This is Sanskruti. I really hope you all are doing well. So before we start this, I would really request you all to please subscribe this channel as it is very new, and please press the bell icon also, so anytime the video that I have been updating it will notify you. Thank you. So let us begin with. In the previous video that we have seen is absolute liability. We have seen its definition, we have seen its rule, and we have seen the two cases, that is MC Mehta versus Union of India, and the second case that you might be very familiar with, that is Bhopal gas tragedy, and the difference between the strict liability and the absolute liability. So now for the today's video, we have taken the third point of the strict the types of liabilities, that is the vicarious liability. So now for the understanding of this, there is a general rule. Okay, the general rule says that any person does wrongful act, he himself is liable for his own act. That means if you commit something wrongful act, you will be held liable for that act. If I commit something wrongful act, I'll be held responsible for that act. I'll be liable for that act. That means he or she does not enter into that liability for the wrongful act done by some other person. लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ बी ने कुछ गलत किया है तो बी तो उसके लिए जिम्मेदार होगा ही, पर बी के साथ साथ ए की भी लायबिलिटी बनेगी. दैट इज कॉल्ड द वाइकेरियस लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय सम अदर पर्सन. इस बी के साथ साथ बी की जो गलती की है, इसके साथ साथ जब ए की भी लायबिलिटी बनेगी, उसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं. तो जब बी के साथ जब ए की लायबिलिटी कब बनेगी? ओके, वो तब बनेगी जब ये दोनों जो असेंशियल्स जो हमने लिए हैं, ओके, दैट इज रिलेशनशिप एंड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, जब ये दोनों असेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं, तो वी कैन से दैट वी कैन इम्पोज अ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑन द ए एज वेल. ओके, so let us understand the essentials. The first is relationship. Okay, when the two parties, okay, there should be a relationship between two parties. Okay, A और B के बीच में vicarious liability को apply करने के लिए there should be a relationship between those parties. And the second is the wrongful act in the course of employment. Okay, that means जब ए और बी के बीच में जो रॉन्गफुल जो एक्ट होता है, उसमें ये दोनों असेंशियल्स होने जरूरी है, तब वी कैन से दैट वाइकेरियस लायबिलिटी वहां अप्लाई होती है. So now let us understand the relationship. The relationship we would understand in the three phases. That is, the first is principal and agent, the relationship between principal and agent, and the relationship in partners in the partnership firm, and the third is master and servant. इन तीनों phases में, इन तीनों relationship में जब भी कोई भी एक्ट कमिट होता है, इन तीनों के बीच में कुछ भी जो एक्ट कमिट होता है, उसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी के अंडर हम उसको बोल सकते हैं. नाउ let us understand the course of employment. So before understanding the course of employment, we'll study the nature of the liability. Okay, जब भी अगर A के साथ जब B, okay, they both commit a wrongful act, जो भी चीज होती है, they are in a joint. Okay, हम उसको बोल सकते हैं कि वो इकट्ठी होती है. जॉइंट, द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इकट्ठी जो एक साथ जो टॉर्ट कमिट होता है. ओके, द जॉइंट टॉर्ट फीजेस. टॉर्ट फीजेस मींस द वन हु कमिट्स द सिविल रॉन्ग. ओके, जो टॉर्ट कमिट करता है उसको टॉर्ट फीजेस बोलते हैं. तो हमेशा जब दो लोग एंटर होते हैं, उसकी हमेशा जो लायबिलिटी रहती है वो जॉइंट रहती है. जॉइंट मीन्स इकट्ठी रहती है. Let us take an example. Its agent is A and the principal is B. So agent is held liable for his own act. He himself has committed some wrongful act. But
due to the way he has done the wrongful act he has done, but उसके साथ साथ बी की भी लायबिलिटी यहाँ पे बनेगी। प्रिंसिपल एजेंट के साथ साथ यहाँ प्रिंसिपल की लायबिलिटी भी बनेगी, बिकॉज दे बोथ आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, दे आर जॉइंट टू ईच अदर, जॉइंट जो चीज़ें हो रही है वो जॉइंटली हो रही है, इकट्ठी हो रही है, एक साथ हो रही है। ठीक है, तो जब एजेंट कोई गलती करता है, एजेंट हैज डन समथिंग रॉन्गफुल एक्ट, तो उसके साथ साथ प्रिंसिपल की यहाँ पे लायबिलिटी बनेगी। नाउ क्यों जब एजेंट के साथ साथ प्रिंसिपल की लायबिलिटी यहाँ पे क्यों बनती है? व्हाई ऑलवेज द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एजेंट, व्हाई ऑलवेज द मास्टर इज लायबल फॉर द सर्वेंट? ऐसा क्यों होता है? नाउ why this happens is, एक मैक्सिम है जिसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट सुपेरियर। ओके, रिस्पोंडेंट सुपेरियर के कारण यहाँ पे हमेशा एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा, सर्वेंट के लिए मास्टर लायबल रहेगा। Because of this maxim that supports is respondeat superior. Respondeat superior means let the principal be liable. अब कई बार इसके जॉइंट के साथ साथ यहाँ पे टर्म्स आ जाती हैं कि सेवरल भी होती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेवरल? जॉइंट एंड सेवरल हम एक साथ बोलते हैं। जॉइंट एज आई सेड दैट एक साथ जो होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेवरल? नाउ सेवरल मींस व्हेन द प्लेंटिफ, जब जो प्लेंटिफ होता है अगर वो कंप्लेंट ये करता है कोर्ट में, तो द प्लेंटिफ कैन sue either principal or agent or both of them. Same goes to this, or he can sue the master or servant or both of them. He can compensate from either two of them or either both of them. Okay. Now, usually cases में ऐसा होता है कि हमेशा से ही एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल कहलाया गया है और सर्वेंट के लिए मास्टर कहलाया गया है, बिकॉज हमेशा एजेंट से ज़्यादा पावरफुल प्रिंसिपल है और सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल मास्टर है। इसलिए हमेशा यूजुअली केसेस में देखा गया है जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ इज ऑलवेज कंपेंसेट फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द मास्टर, as usually because of the larger pocket size the plaintiff has always compensate from the bigger parties, that is principal and the master. तो जो nature of liabilities है that was joint and several, ठीक है, joint and several ये तीनों फेज में अप्लाई होगा। ओके, ये तीनों फेज में, जैसे फॉर एन एग्जांपल वी कैन से प्रिंसिपल एजेंट में भी, पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म में भी, और द मास्टर एंड सर्वेंट केस में भी जॉइंट एंड सेवरल जो नेचर ऑफ लायबिलिटी जो है दैट इज जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द थ्री फेजेस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। अगर हमको देखना है कि किसी भी इसमें जब कमिट होता है कोई रॉन्गफुल एक्ट, उसमें अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, सो हाउ वी कैन चेक दैट? वी कैन चेक दैट बाय द अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ प्रिंसिपल हैज ऑथराइज्ड एजेंट टू डू समथिंग रॉन्गफुल एक्ट, ओके, अगर प्रिंसिपल एजेंट को ये बोलता है दैट भाई तू कार लेके जा एंड नॉक समवन ऑन द रोड एंड यू दैट एजेंट हैज कमिटेड सम एक्सीडेंट, ओके, he has knocked X person on the road and he has committed the accident, he has committed the crime over there. So now यहाँ पे एजेंट के साथ साथ प्रिंसिपल भी लायबल होगा, बिकॉज प्रिंसिपल has authorized agent to commit something wrongful act. Okay, यहाँ पे हम बोल सकते हैं master has expressly or impliedly authorized his servant to do something wrongful act. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑथोरिटी का जो फर्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं वो है ऑथराइज टू डू समथिंग रॉन्गफुल एक्ट। ऑथोरिटी का एक सेकंड पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है हमेशा जो प्रिंसिपल या तो मास्टर होता है दैट ऑलवेज ऑथराइज टू डू समथिंग रॉन्गफुल एक्ट, ही कैन ऑल्सो ऑथराइज ही कैन ऑलवेज ऑथराइज एजेंट एंड सर्वेंट टू डू सम राइटफुल एक्ट। नाउ अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मास्टर सर्वेंट को ये बोलता है कि भाई तू मेरी कार ले और उसको ड्राइव कर, नाउ बट
सर्वेंट को ये नहीं बोला गया था कि उसको ड्राइव कैसे करनी है, ठीक है। मास्टर ने ये बोल दिया कि तू भाई मेरी कार लेके जा और उसको चला, बट मास्टर ने ये नहीं बोला था कि भाई तू कैसे चलाएगा, ओके। सो फॉर दैट पर्पस सर्वेंट ने एक एक्सीडेंट कमिट कर दिया, वहां पे एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस is master is liable for that act? The reason is yes, he will be liable under it, because यहाँ पे कोई भी इफेक्ट ऑफ, हम यहाँ पे पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, ओके। तो यहाँ पे मास्टर कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो रिटर्न में दिया था कि भाई तू ऐसे मत चलाना, बट तूने चला तो यहाँ पे मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो अगर ऐसे तो फिर हर मास्टर कोर्ट में जाके यही बोलेगा कि भाई मैंने तो रिटर्न और इसमें लिखा था कि भाई तू ऐसी गाड़ी मत चला, तो आई विल नॉट लायबल फॉर दैट, ठीक है। तो जो ऑथोरिटी का जो फर्स्ट हमने जो देखा था प्रिंसिपल एंड एजेंट में, वो था ऑथराइज टू डू समथिंग रॉन्गफुल एक्ट। इसका सेकंड हमने अभी देखा दैट ऑथराइज टू डू सम राइटफुल एक्ट, बट द वे इट हैज डन इट वाज अनऑथराइज्ड एंड इट वाज अनलॉफुल। जिस सर्वेंट ने जिस वे में उसको किया, ओके, मास्टर ने उसको अच्छे काम के लिए भेजा था, बट द वे द सर्वेंट हैज डन दैट एक्ट, उसको हम ऑथराइज्ड बोलते हैं, और सेकंड उसको अनलॉफुल बोलते हैं, बिकॉज लॉ उसको कभी भी डिफाइन नहीं करेगा, लॉ उसको हमेशा गलत ही मानेगा। तो देयर वर द 2 पॉइंट्स। नाउ द थर्ड इज ऑथराइज्ड में इंसिडेंटल एक्ट्स भी होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ some employees of some employees of X factory goes for the meal, okay, goes for the midday meal, okay, some miles away from the factory. Now जाते जाते, now while going और while coming back, उनसे कोई एक्सीडेंट कमिट हो जाता है, ठीक है, वो एम्प्लॉय से कुछ एक्सीडेंट कमिट हो जाता है। यहाँ पे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ पे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जिस फैक्ट्री से, जिस कंपनी से वो जो एम्प्लॉयज थे, उसके वजह से वो कंपनी लायबल होगी, बिकॉज during the course of that period of the time they went for the midday meal। उसके बाद वो आ रहे थे वापस कंपनी में, उस ड्यूरेशन के बाद वो वापस they were coming back to the company, but during that they commit an accident। Now the court will held that the company will be liable in the course of employment। इसमें एक वेरिएशन हम ये देख सकते हैं कि वेरिएशन में भी क्या होता है, जब कोई बंदा अगर जाता है मिड डे मील लेने के लिए, बट ड्यूरिंग दैट वो उसकी फैमिली के पास चला जाता है, ही डज नॉट कम बैक, ओके, ही डज नॉट कम बैक टू दैट कंपनी। वो जब निकलता है वो वहां से अपने फैमिली के पास चला जाता है, ओके। सो यहाँ पे जब उससे कोई एक्सीडेंट कमिट हो जाता है, यहाँ पे अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो विल द कंपनी बी लायबल? नो। व्हाई? बिकॉज वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है, ओके, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है। वो अपने प्राइवेट जो कैपेसिटी थी वो उसके लिए उसने वो जो गाड़ी थी वो यूज की, वो वहां से वापस नहीं आया था, वो वहां से अपने वापस फैमिली के पास गया था, वो फैमिली को वहां पे पिकनिक पे लेके गया। ड्यूरिंग दैट उससे वो एक्सीडेंट हो जाता है उसकी कार से। So now here the company will not be liable because he has used that car for the private capacity. He has used that for his private use. तो यहाँ पे जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए हम फर्स्ट ऑथोरिटी चेक करते हैं। ऑथोरिटी के अगेन 3 फेजेस है, जैसे हमने देखा जॉइंट एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट में जैसे हमने देखा। तो ऑथोरिटी टू डू समथिंग रॉन्गफुल एक्ट, ओके। नाउ इफ प्रिंसिपल जैसे प्रिंसिपल अगर एजेंट को अगर कुछ गलत चीज के लिए भेजता है, तो यहाँ पे उसके साथ साथ एजेंट ने तो कमिट किया ही है क्राइम नाउ, बट द एजेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रिंसिपल भी लायबल होगा। The second we saw is to authorize to do something rightful act, but the way it has done it was unauthorized, and the second it was unlawful, ठीक है। The third is the incidental acts that are under authority। अगर जैसे आपने एग्जांपल लिया, कुछ एम्प्लॉयज अगर जाते हैं, उससे कोई कमिट कंपनी के टाइम में अगर वो जाते हैं, अगर वहां से उनका जो गाड़ी है वहां से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी विल हेल्ड लायबल। बट इफ दैट एम्प्लॉय इज यूजिंग दैट कार फॉर हिज ओन पर्पस,
यहाँ पे ऑथोरिटी नहीं आएगी और यहाँ पे ना कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे लायबल नहीं होगी। सो लेट्स टेक एन केस लॉ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेमस केस लॉ है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी 1786। सो यहाँ पे हुआ ये था, देयर वाज अ हस्बैंड एंड वाइफ, ओके। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का जो नेबर था, द एम्प्लॉय, ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द एसबीआई, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एसबीआई का एम्प्लॉय था। नाउ हस्बैंड जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, उन्होंने कुछ चेक्स और अमाउंट्स वो नेबर में जो रहते थे, वो जो एम्प्लॉय था उनको दिया था कि भाई आप इसको डिपॉजिट कर देना। नाउ व्हाट हैपेंड इज, this couple does not receive any receipt for that the money that has been deposited or not, they have not given the receipt। यहाँ पे होता ये है कि जब इन्होंने वहां डिपॉजिट करने को दिया था, दैट एम्प्लॉय ऑफ द एसबीआई बैंक हैज यूज्ड दैट मनी फॉर हिज ओन पर्पस, ओके। उसने डिपॉजिट नहीं किए, बट उसने अपने प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट कैपेसिटीज में यूज करके उसने एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया। सो नाउ इन दिस केस द कोर्ट अपहेल्ड दैट जो एम्प्लॉय था उसने डिपॉजिट करने के बजाय अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसे यूज किए, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट बी लायबल, बिकॉज उसने एक तो फर्स्ट चीज उसने खुद के इसमें यूज किया, एंड द सेकेंड वाज ही वाज फ्रेंड ऑफ दोज कपल was given him the money. So being the friend of that couple, he used that money for his own benefit, he has used that money for his own purpose। तो यहाँ पे जो हमने देखा गया है यहाँ पे कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लायबल नहीं होगा। Let's take another example. Let's assume that there are two brothers in one house, okay? One brother stays in abroad and one brother stays in India. Now the brother that is staying in abroad, he's the owner of the bike that is in India, okay? He's the owner of that bike. Now the younger brother has used that bike and he has committed an accident from that bike. Now here, will the brother that is staying in abroad will be liable for this act? So the answer is no, because he was not knowing that his bike was used by his younger brother, okay? उसको नहीं पता था कि अब्रॉड में बैठे बैठे उसकी जो बाइक यहाँ पे इंडिया में है वो उसका जो छोटा भाई है वो यूज करेगा और उससे एक्सीडेंट कमिट हो जाएगा। तो उससे जो एक्सीडेंट कमिट होगा, the liability will be only by the younger brother, not by the एल्डर ब्रदर, बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग कि उसकी बाइक यहाँ पे यूज हो रही थी और उससे जो एक्सीडेंट कमिट हुआ था। The elder brother is not authorized the younger brother to use that bike or he is not authorized him भाई तू गाड़ी चला और कैसे चलानी क्या चलानी, उसने कोई ऑथराइज नहीं किया, बल्कि उसको पता भी नहीं था कि उसकी बाइक का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। So the elder brother will not be liable in this case. Another point is that is partners in the partnership form is that has been seen in the section 26 of the Indian Partnership Act 1932, which clearly states that अगर कोई भी पार्टनर अगर दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा जो भी हो, 3 से 4, अगर उसमें से अगर एक भी पार्टनर, if any of those partner commit a wrongful act, okay, the guilt of that wrongful act will be liable to all the other persons who are in partnership of that person, ठीक है? अगर एक कोई पार्टनर उसमें से कोई wrongful act commit करता है तो उसके साथ साथ जितने भी जो पार्टनर्स हैं वो liable होंगे। That is seen in the prong of the section 26 of the Indian Partnership Act. इसका एक केस लॉ है हैमलिन वर्सेस हुस्टन एंड कंपनी 1903। इसमें हुआ ये था, द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज वेयर यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, ओके। यहाँ पे हुआ ऐसा था जो एक पार्टनर था उसने प्लेंटिफ के बंदे को, ठीक है, एक जो पार्टनर था इसने जो प्लेंटिफ का जो क्लर्क होता है उसको ब्राइब दी, ठीक है, उसको ब्राइब दी, उसको पैसे दिए और
वो ब्राइब देते टाइम उसने कुछ सीक्रेट्स रिवील किए, ठीक है। और सीक्रेट्स रिवील करने के बाद ही सेज दैट कि तू भाई अपने जो मास्टर है उसकी यहाँ से तू काम करना छोड़ दे, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे और तू मेरे पास आ जा। तो यहाँ पे 2 acts that were committed is he first of all he has given the bribe to his, or second he has revealed some unofficial secrets of his master to him and he said that कि तू उसका जॉब जो है वो छोड़ के उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके तू मेरे पास आ जा, ठीक है। सो देयर वर 2 acts that were committed, that the wrongful act that were committed। तो यहाँ पे जो हमने देखा पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म में जो हम देख रहे हैं वो है सिर्फ एक कोई पार्टनर अगर रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है उसके साथ साथ उसके जितने भी जो पार्टनर्स हैं वो भी लायबल होंगे। तो इसमें जब पार्टनर ने जो ब्राइब दी थी, ओके, नाउ उसके साथ साथ जो बीइंग इनोसेंट जो पीपल थे उसके साथ वो भी लायबल होंगे, ठीक है। Now the third point is master and servant। जैसे हमने यहाँ पे देखा था प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट को एक ये डिफाइन करता है, एक वर्ड डिफाइन करता है, दैट इज ऑथोरिटी, ओके। सेम एज हियर मास्टर एंड सर्वेंट को एक वर्ड डिफाइन करता है, दैट इज फुल कंट्रोल एंड सुपरविजन। व्हाट डज दिस मीन? फुल कंट्रोल एंड सुपरविजन मीन्स द सर्वेंट should be in the full control, in the full discretion and the supervision of the master. That means the master has the full supervision, full control and full authority on his servant, okay। servant कौन और कब कहलाता है? जब कोई बंदा अपने मास्टर के अंडर फुल कंट्रोल में होता है, फुल ऑथराइजेशन में होता है और फुल सुपरविजन में होता है, तो हम उसको बोलते हैं मास्टर एंड सर्वेंट। इसका एक जो बेसिक जो डिफरेंस हम बोल सकते हैं वो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सर्वेंट। So what is independent contractor and what is the difference between the independent contractor and servant? Independent contractor means the word itself indicates that independent, the one who is independent, the one who is not working under anyone, वो बहुत independent है, वो अपने ही डायरेक्शन में चलता है, वो किसी के अंडर नहीं चलता है, ना कोई उसको गाइड कर रहा है, he himself work in his own direction, he is called the independent contractor। The term of servant is servant हमेशा उसके मास्टर के अंडर काम करता है, ठीक है। सर्वेंट तभी सर्वेंट वही होता है जो अपने मास्टर के फुल सुपरविजन में होता है, वही बंदे को हम सर्वेंट बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मुझे कहीं पे बाहर जाना है एंड इफ आई कॉल द टैक्सी ड्राइवर, ओके, मैं उसकी टैक्सी में कहीं पे बाहर जा रही हूँ। नाउ ड्यूरिंग दैट ही कमिट सम wrongful act, तो will I be liable, will I be vicariously liable for that? No. Why? Because उसके और मेरे बीच में जो वाइकेरियस लायबिलिटी की जो एसेंशियल्स है, दैट इज रिलेशनशिप एंड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आई विल नॉट बी लायबल, आई विल नॉट वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्सीडेंट दैट हैज बीन कमिटेड बाय हिम, बिकॉज ही इज independent contractor. He is independently driving his own car, he is driving in his own direction. Just I have said him, भाई मुझे यहाँ पे तू पहुँचा दे, that's it। मैंने उसको कोई गाइड नहीं किया है, but he is driving by himself, उससे वो एक्सीडेंट जो है वो उससे कमिट हुआ है। तो here I will not be held liable for the vicarious liability, but if I have told my driver to drop me somewhere, now due to duration of this उससे कोई मेरे ड्राइवर से कोई एक्ट जो एक्सीडेंट है वो कमिट हो जाता है, यहाँ पे आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस बिकॉज ही इज माई सर्वेंट एंड आई एम हिज मास्टर, ठीक है। मैं उसको गाइड कर रही हूँ, भाई तू ऐसे चलेगा, तू यहाँ पे इतने बजे जाएगा, तुझको ऐसे चलाना है। सो बेसिकली द मास्टर इज हू दैट ही इज टेल हाउ टू डू, how it has been done, where it has to be done, the all the guidance that is provided by the master to his servant। अगर मेरे ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट कमिट हो जाता है तो यहाँ पे द मास्टर दैट इज मी, आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट एक्सीडेंट। तो जैसे
हर एक लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो यहाँ के कुछ एक्सेप्शंस हम देख सकते हैं। जैसे यूजुअली एम्प्लॉय के लिए हमेशा उसका जो सर्वेंट होता है वही, एम्प्लॉय के लिए जो हमेशा उसका जो मास्टर रहता है वही लायबल होता है। बट कुछ जैसे कुछ ये एक्सेप्शंस मान सकते हैं। अगर एम्प्लॉय है, अगर वो ऑथराइज कर रहा है मास्टर को टू डू समथिंग रॉन्गफुल एक्ट, ओके, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, द एम्प्लॉय विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। हमेशा यूजुअली हर केसेस में जो मास्टर होता है वही लायबल होता है अपने जो सर्वेंट होता है उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए। बट कई बार जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी लायबल हो सकते हैं। एम्प्लॉय कब लायबल होते हैं? जब the employee has authorized his master to do something wrongful act. So here the employee will be held liable for that whole wrongful act. So हमने आज के वीडियो में वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ा, उसके एसेंशियल्स हमने पढ़े, नेचर ऑफ लायबिलिटी हमने पढ़ा। नेचर ऑफ लायबिलिटी में हमने जॉइंट एंड सेवरल देखा। इसके जो रिलेशनशिप जो होते हैं, दैट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म एंड द मास्टर्स एंड सर्वेंट, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। फिर इसमें जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉइंट एंड सेवरल में जो डिफाइन जो वर्ड करता है दैट इज ऑथोरिटी, ओके। नाउ प्रिंसिपल एजेंट को जो बेसिकली जो वर्ड मैक्सिम जो सपोर्ट करता है दैट इज रिस्पोंडेंट सुपेरियर। पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म में हमने देखा कि जब कोई एक पर्सन एक पार्टनर को जो रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके साथ जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी लायबल बन सकते हैं इसमें। तो थर्ड इज मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर सर्वेंट हम किसको बोलते हैं? सर्वेंट मीन्स जो फुल कंट्रोल और फुल सुपरविजन अपने मास्टर के अंडर होता है उसको हम सर्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर and servant. This is very important. You need to understand the difference between independent contractor and servant as well. Independent contractor means the term itself means that independently वो काम कर रहा है. He has not been guided under anyone. He is doing everything by his own restrictions. He is doing by his own guidance. सर्वेंट हमेशा वो होता है जो अपने मास्टर के अंडर रहता है, मास्टर उसको हमेशा गाइड करता है, ये सोल सुपरविजन ऑन हिम, उसको हम मास्टर बोलते हैं। So this was the whole concept of today's video. I really hope that you have understood this concept. I really hope that you have liked this video as well. So I really request you all to please subscribe this channel. As I stated earlier also, it is very new on this platform. I really need your love and support. We will be coming very soon with a new topic. Thank you.